विद्युतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 9वें अध्याय, the 9th chapter we have completed up to 11-12. तो भगवान अर्जुन को ज्ञान विज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, जिसके अंदर अपने प्रकृति का व्याख्यान करते हुए प्रकृति के वश में सारा जो जगत है बार बार इस संसार में प्रकट होता हुआ, भूतग्रामम इमं प्रकृतेः वशात् अवशम कृष्णम तानि सर्वाणि, उन सभी को निबद्धन्ति किम कर्माणि, अपने अपने कर्मों से बंधे रहते हैं। कर्मणा बध्यते जंतुः, लेकिन मैं तेषु कर्मसु असक्तम उदासीनवत् आसीनम। I always become free. I have no attachment of any action of the jivas. So therefore, I am free, but they get caught because like the koshavat, koshakaravat. And this whole prakriti, maya adhyakshena, as my presidency, I just be behind this prakriti hi sacharacharam suyate, prasuyate. All the jangamam, sthavaram, movable, unmovable things, because of my own presidency, hetuna anena jagat viparivartate. ये जगत अपने आप जो है परिवर्तनशील बना रहता है, but people cannot understand that because of their own karma. मूढ़ाः माम अवजानन्ति, मेरे महानता को, गंभीरता को न समझते हुए इसलिए क्या करते हैं, मजाक क्यों, माम मानुषिम तनुम आश्रित, मैं मानो एक प्रकार से सामान्य मानव का मैंने शरीर धारण किया है, किंतु मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते। परम भावम अजानन्तः, they don't understand of my original nature or my own original स्वरूपम भूतम भूत महेश्वरम, सारे भूतों का मैं एक प्रकार से परमात्मा हूँ, ईश्वरम। Why? Because all what they do, मोघ आशाः, मोघ कर्माणः, मोघ ज्ञानाः विचेतसः, जो अविवेकी लोग, उनका सारा का सारा जो व्यर्थ, वृथा आशा, वृथा कर्मणः, वृथा ज्ञानाः। ज्ञान किसके लिए, बस छोटा जो डिजायर है उसको पूरा करने के लिए उतना ही कर्म करेंगे, उतना फल पा करके उसी में ही वो लगे रहेंगे। मोघ कर्माणः और मोघ आशा, very small desires, and for fulfill it they do so many things, and that is how their knowledge is within very limited. Then again, ye punah shraddhadhanaah, other people shraddha yuktaah, mahatmanah mam devim prakritim asritaah, they get the asritaah, get ashraya of my daivim prakriti. We have got two kinds of prakriti, daivi or asuri. So those who have got daivi prakriti, they come to my side, mam ashritaah, mam prakritim asritaah. Who are they? Mahatmana, achudra chittaah. Bhashyakara says achudra chittaah. Those very small minded, so that is not there. They are very big minded, they have got lots. Therefore prakritim, what kind of prakriti they have? Daivim prakriti.
दैवी प्रकृति मीन्स यह शम दम उपरमादि, शम दम दया श्रद्धादि लक्षणम आश्रिता। ऐसे मेरे शम दम दया और श्रद्धा इन सारे प्रकृति को अपनाते हैं। स्वभाव अवलंबनम, ऐसा जो उनका स्वभाव, ज्ञात्वा भूतम अव्ययम, दिस काइंड ऑफ भूतम अव्ययम, आई एम द पर्सन भूतादिम अव्ययम, आदि पुरुषः, सबका कारण। Adi means nothing was there and it was only the cause to bring all this activity or this prakriti means this whole creation, uh, bring in the form that is called Adi, Adim Avyam. Kasyadi Bhutanam. You can say all this living being or Pancha Mahabhutaha. What are Pancha Mahabhuta? Akash, Vayu, Agni, Vayu, Akash, Vayu, Agni, Jal and Prithvi. These are the Panchabhuta. You can say they are, he is the Adi. One place he says, Taitriya, Tasmatva etasmat atmanah akashah sambhuta, akashad vayuhu, vayoho agnihi, agnerapah, adhya prithivim, prithivям oshadaya. So this is another way of seeing the creation. So he was Adi for the Bhutas. Let's say Bhutadi, Bhuta Adi Avyayam. And therefore those जो लोग ऐसे मेरे दैवी प्रकृति को समझते हैं वो मेरा आश्रय लेकर के महात्मान, जो आत्मा की महानता को जिन्होंने जाना है। तो हमेशा अगर हम देखते हैं, there were two kinds of prakriti of people, Daivi and Asuri. So whatever they have got, जो जिन्होंने इस संसार में पाया है उसका वो दो प्रकार का उपयोग लेते हैं। एक तो सदुपयोग करता है और दूसरा दुरुपयोग करता है। तो इसलिए कहा जाते हैं कि एक जगह बहुत सुंदर कहा भर्तृहरि ने कि जिसके पास विद्या है तो अगर आसुरी वाला है तो क्या करेगा, उसका विवाद करने के लिए हमेशा अपने आप को दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए ही विल ट्राई। विद्या विवादाय, इफ यू हैव गॉट वेल्थ, धनम मदाय, टू शो arrogancy or do some kind of wrong thing with others, dhanam madaya, to make something, some problem others, to use that kind of dhanam madaya. And the muscle power, what for? Shakti hi paresham parapidanaya, and he always use his muscle power to give pain or pida for others. This is the Asuri Sampatti. But the other one will, what will do? He will Jnanaya. He will share his knowledge for others' benefit. Jnanaya. And whatever he has got, wealth, Danaya. He will help for others. And the muscle power to Sevaya. Jnanaya, Danaya, Parirakshanaya. He will use his muscle power to protect others. It's beautifully said. Vidya vivadaya dhanam madaya shakti paresham parapidanaya khalasya sadhor viparitametat jnanaya danaya parirakshanaya. Sadhoho khalaha. Khalaha is Asuri and Sadho is Daivi. So these are the two kinds of prakriti we have got in this nature or in this creation. इसलिए कहा है दैवी प्रकृति आश्रिताः,
भजन्ति अनन्य मनसः, is focusing mind and not scattered mind. न अन्येति अनन्यम, अनन्य मनसः, the focused mind, bhajanti. How? Gyatva, to, or after understanding me, how? Bhutana, bhuta adim avyam. I am the cause, karanam for all this creation, or all these panchama bhuta. So therefore, one who has got that prakriti, what Daivi prakriti. But the Asuri Sampati, Rakshasim Asurim, always Moghashaha, Mogha Karmana. So therefore, now he is talking about the Daivi prakriti. The next one, 14. Satatam kirtayanto mam. Satatam kirtayanto mam. Yatantascha dridhavrataha. Yatantascha dridhavrataha. Namasyantascha mam bhaktya. Namasyantascha mam bhaktya. Nityayukta upasate. Nityayukta upasate. Kirtayantaha. Yatantaha. Dridhavrataha. Satatam kirtayantaha. Dridhavrataha yatantaha. Namasyantaha. Cha mam bhaktya nityayuktaha. So all this Visheshanam, adjective for the devotees who has got devotion towards me. So upasate, these people, they have got special devotion. मेरी उपासना करते हैं. कैसे? One can go kirtayantah satatam sarvada. In his life, the priority to the Ishvara, he offers everything. Kirtayantaha. Here you can say, we don't say only those who are sitting and doing, Hare Krishna or Hare Rama. Swamiji say, don't think that way. The others who has got this kind of mind, they are reading Bhagavad Gita, they are understanding Bhagavad Gita, they are reading, Bhashyam, and wanted to know the meaning of, and those who have got, Upanishads knowledge, they go through that. ये सारे के सारे लोग जरूरी नहीं कि बच कर बैठ करके हरे कृष्णा करें. There are different way to approach or do sankirtanam. So therefore, people can chant Veda, people can do Parayanam, people can do, Parayana Bhagavad Gita, whatever sadhana they can do, that way they are kirtayantaha, Brahma Swarupam, Bhagavantam. So they do sadhana to achieve the sadhyam and become a sadhaka. So become a sadhaka to achieve the sadhyam, the goal, and they do what? Sadhana. That's called kirtayantaha. And because normally our indriyas scattered, हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, हमारी इंद्रिया बहिरंग हो जाती, परांसी खानी ही यत्रिनाथ स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति. हमारी इंद्रिया जो है भगवान ने बहिरंग बनाई, और इसलिए वो बाहर का ही क्या करती है, स्वाद लेती है, बाहर के ही इंद्रियों को, विषयों को वो चाहती है. तो इसलिए बही ही. बट द पर्सन हु हैज गॉट दैट कमिटमेंट, कश्चित धीरः आत्मानम ऐक्षत. That's we say yatantah. People have got that kind of power. Ashaya says indriya upasamhara shamadamadaya ahinsadi lakshanahi. इसलिए इंद्रिया बाहर जाती है, लेकिन इंद्रियों को अपने आप में समेटना बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है.
और वो अगर कोई करता है तो अवश्य ही एट होम, ही इज एट होम। अदरवाइज, इसलिए कहा जाता है ना, पानी किधर बहता है, ढलान की ओर। लेकिन वही पानी अगर हमें 10वें मंजिल में, 20वें मंजिल में चाहिए तो क्या करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। तो पंप का अर्थ ही है यतन्तः, पुरुषार्थ। तो इंद्रिया जिधर जाती उधर अगर जाने देंगे तो आपकी खाट खड़ी हो जाएंगी, है ना। और ये मैं कहा किसके लिए निकला और क्या बन गया। इसलिए इंद्रियों को जो अपने वश में करता है, इंद्रिय उपसंहार, अपने अपने विषयों से उनको समेट करके, कैसे शम, दम, दया, अहिंसादि लक्षण ही। तो यू हैव टू डेवलप दिस क्वालिटी। शमः अंतर इंद्रिय दमनम, दमः बहिरिंद्रिय दमनम, दया, daya to compassion others, creature, whatever the helpless things are there, we have to try to help them. अहिंसा, और इस प्रकार से दया आदि लक्षण ही यतंता, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये सारी की सारी। जो स्वामी जी से, इफ यू डोंट हैव वैल्यूज of the value, then you are not on the right path, because this is very common thing. First you have to approach, or first you have to follow and do something that you become a, abhayam for others. So that is how yatantaha, the person who is trying to withdraw his indriyas from the common, from the vishayas. So yatantaha, इंद्रिय उपसंहार, अहिंसादि लक्षण ही धर्म, धर्म ही प्रयतनता, और धर्म को मन में रखकर तो सततम कीर्तयंत यतंत, एंड दैट इज नॉट फॉर सम टाइम, कुछ दिन के लिए क्या, बाद में वापस ऐसे के वैसे नहीं। दृढ़ व्रता, उनके अंदर फुल कमिटमेंट, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। जो भी होगा, जैसा भी होगा, लेकिन हम बिल्कुल अपने इन मूल्यों से डिगेंगे नहीं। सौ दृढ़ व्रता, नमस्यन्तः, नमस्यन्तः हृदय ईशयम आत्मानम। हम मंदिर में तो जाते हैं नमस्कार करने के लिए, दर्शन करने के लिए, बट अगर आसपास में मंदिर नहीं है, लेकिन कम से कम आप वेदांति के लिए तो भगवान ही देहो देवालय प्रोक्तः, आपका देह ही देवालय है, और उसके अंदर रहने वाला देव आत्मा ही आपका भगवान। इसलिए आप उसी को ही पवित्र रखो। पवित्र कैसे होंगे, आप जो अपने खान पान, रहन सहन, अपनी जितनी सारी क्रिया है उसको आप अच्छी तरह से सत्व गुण से भरे हुए बने रखे, और वही आपके लिए क्या है, एक प्रकार की मंदिर की पूजा होती है। यहाँ भगवान नमस्यन्तः, आप नमस्कार भले मंदिर में करने जाते हैं, लेकिन बड़ों को भी नमस्कार करते हैं, लेकिन कैसे, उनके अंदर भी वो आत्मा है, उनको देख करके माम भक्त्या नमस्यन्तः, मेरे अंदर, मुझे अंदर समझ करके, अपने अंदर, हृदय के अंदर ऐसे भक्त्या, न कि कभी कुछ दिन तो कहा कि नहीं मैं तो सबको भगवान मानता हूँ, भगवान के स्वरूप मानता हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं, ऐसा नहीं। भगवान से नित्य युक्ता, उसके जीवन में ये अखंड व्रत है, कभी भी उसके अंदर गैप नहीं आता कि नहीं कुछ दिन क्या, कुछ दिन छोड़ दिया है, कुछ दिन दैवी प्रकृति, कुछ दिन असुरी प्रकृति, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए कहा जाता है ये नित्य युक्ता, इस प्रकार से वो हमेशा इसी सेवा में लगे हैं, सदा मेरा चिंतन करने वाले, ऑलवेज। सो देयरफॉर बहुत सुंदर कहा, नित्य युक्ता भक्त्या उपासते सततम निरंतरम सर्वदा माम भगवंतम ब्रह्म स्वरूपम, मुझे ब्रह्म स्वरूप मान करके, आत्मा सबका आत्मा मान करके, कीर्तयन्तः, कीर्तनम कुर्वन्तः इन द मेनी फॉर्म,
यतन्तः, है ना, पुरुषार्थ करते हुए, दृढ़व्रता, और अपने जो कमिटमेंट ली उसके अंदर, जो भी उनका व्रत है उसके अंदर कहीं भी ढिलाई न करते हुए, नमस्यन्तः, सीइंग एवरी आत्मा, एवरीवन इज विथ इन आत्मा स्वरूपम, है ना, नमस्यन्तः माम भक्त्या, and got full of devotion of Ishvara, and that is how nitya yukta upasate. These people always do seva for me. They are the daivim prakritim asritaha. Okay, so 50. केन केन प्रकारेण उपासते, when he says उपासते नित्य युक्ता, तो किस किस रूप में उपासना करते इसके बारे में इस 15वें श्लोक में, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतः मुखम्। यजन्तः, सब लोग क्या करते, यजन करते, उपासना करते, पूजयन्तः, यजतु वर्शिप, यजन्तः पूजा करते हुए, कैसे, ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान ही उनका क्या है, यज्ञ है, ज्ञानम एव भगवत विषयम यज्ञ, भगवान के स्वरूप में जो है ज्ञान ही है ना, ज्ञान वही पुरुष है ना, विष्णु, क्योंकि जो यज्ञ पुरुष कहा जाता है और वही हमारे लिए भगवान का स्वरूप। कुछ लोग उसी को ही भगवान का विषय मान करके भगवत विषयम यज्ञ तम ज्ञानम, तो उनकी जो है यज्ञ के स्वरूप में भगवत विषय ज्ञान रूप यज्ञ से ही मेरी पूजा करते हैं। च अपि अन्य, और दूसरे लोग ज्ञान को ही ज्ञान यज्ञ मानते हैं, इसलिए कहा जाता है यज्ञ क्या होता है, अगर आपका उपदेश, आपके अच्छे शब्द किसी के कान में पड़ते हैं, जैसे आहुति आग में पड़ती है ना, वैसे कान में क्या पड़ते हैं, शब्द पड़ते, तो कान में भी एक प्रकार का हवन, ये भी यज्ञ। आंखों में रूप जाता है, बाहर की कोई चीज दिखवा जाता है, वो भी एक प्रकार का यज्ञ माना जाता है। तो दिस आर वैराइटीज ऑफ यज्ञ। ज्ञान यज्ञ न, ज्ञान ही यज्ञ है, ऐसा अपि च अपि अन्य यजन्तः, मेरी क्या करते, यजन्तः पूजयन्तः, उपासना करते, माम उपासते, मेरी उपासना करते। और जरूरी नहीं एक ही जगह, एकत्वेन च पृथक्त्वेन, एक रूप में, एकमेव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन यजन्तः, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सबके अंदर जो है एक ही आत्मा है। अब घर के अंदर कितनी सारी लाइटें जलाते हो, कितनी सारी चीजें चलती है, किससे, बिजली से, बट इन एंड थ्रू करंट इज वन एंड द सेम, एक ही करंट है ना, तो उसको जो है पता है कि करंट एक ही है, लेकिन सारी उपाधियां उसके अलग 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 है। तो इसलिए एकत्वेन, आत्मा सबका एक ही है, तो इसी को कहा जाता है एकम एव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन यजन्तः, परमार्थ ज्ञान से पूजन करते ही मेरी ही क्या करते, उपासते उपासन्तः। पृथक्त्वेन, कुछ लोगों को अलग अलग जितने सारे स्वरूप है ना, इसलिए हम कहते क्या, चंद्र नारायण, सूर्य नारायण, लक्ष्मी नारायण, है ना, सबके अलग 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 जो है भावना है। तो पृथक्त्वेन केचित्, भाष्यकार से
आदित्य चंद्रादि भेदेन कोई कोई तो उसको अलग अलग चंद्रमा के रूप में, सूर्य के रूप में, अलग भेदों के द्वारा उनकी क्या करते, उपासना करते हैं। तो सही है। तो इसलिए हमारे पास में बहुत सारे, भगवान ने कहा कि बहुत सारे 33 लाख जो है मूर्तियां हैं अपने पास, अलग अलग स्वरूप है भगवान के। किसी ना किसी रूप में आप अपने उनको, उनका भजन करो, उनको भजो। तो जरूरी नहीं, तो यू हैव गॉट वैरायटीज, पृथक्त्वेन, हाँ, परम आत्मानं पृथक्त्वेन वा एकत्वेन, एक मान करके आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, अथवा पृथक्त्वेन आदित्यादि चंद्रादि, अलग अलग, भगवान विष्णु आदित्य रूपेण, भगवान विष्णु ही आदित्य के रूप में है, भगवान विष्णु ही चंद्रमा के रूप में है, भगवान विष्णु ही अन्य अन्य अपने अपने उपाधियों में है, लेकिन है तो उसका स्वरूप तो पृथक्त्वेन बहुधा, उस प्रकार से अवस्थित, बहुत प्रकार से सबके अंदर वो विराजमान है। स एव भगवान सर्वतोमुख विश्वतोमुख विश्वरूप, सब ओर से विराट के स्वरूप में जो है विश्व मूर्ति भगवान जो है स्थित है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को 11वें अध्याय में क्या दिखाया, विराट विश्व रूप। तो इसलिए विराट स्वरूप में भगवान जो है क्या है, अगर उनकी देखेंगे तो उनका ऊर्ध्व शीर है, ऊर्ध्व मूला है ना, उनका जो शीर है ऊपर, उनकी दो आंखें क्या है, सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें है, आसमान उनका सिर है, पाताल उनके पैर है, ये ब्रह्मांड उनका स्टमक है, और उसके अंदर जो हम लोग रह रहे हैं ना, तो ये भी एक प्रकार का उनका विशाल रूप, उसको कहते हैं विराट। तो इस प्रकार से विश्व रूप में भी बहुधा विश्वतः मुखम, तो विश्व ही जिनका मुख है, हर एक माहुत भगवान का ही माहुत है। सहस्र शीर्षा पुरुष, शीर्षा है ना, सहस्त्र मतलब हजारों शीर है उनके, सहस्राक्ष हजारों उनकी आंखें है, सहस्त्रपात हजारों उनके पैर है। तो ऐसा जो स्वरूप है ये विश्व का, इसलिए कहते बहुधा विश्वतः मुखम। तो अन्य अन्य प्रकार से एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम माम उपासते च अपि अन्य ज्ञान यज्ञेन यजन्ते, कुछ ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी क्या करते हैं, उपासना करते हैं, है ना। इस प्रकार से बहुधा बहु प्रकारेण उपासते। So that is how people have different things, but they are worshipping me, so no problem. हाँ, एक बार कहा जाता है सगुनी भजता निर्गुणी पावले, मराठी में आता है कि जो सगुण साकार की उपासना करते 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 निर्गुण निराकार में वो पहुंच जाता है। तो पहले तो पता चले कि हाँ इसके अंदर बिजली है, ये ट्यूब दिखाई देता है, ये ट्यूब लाइट ही नहीं है, उसके अंदर बिजली है। जो बिजली पंखे के लिए भी, जो बिजली फ्रिज के लिए भी जाती तो है, उसके अंदर एक ही चीज, इससे पता चला कि ये सर्वशक्तिमान है। तो आत्मा सबके अंदर है। ये एक बार ज्ञान होता है तो फिर बहुधा विश्वतः मुखम पृथक्त्वेन एकत्वेन माम उपासते यजन्तः अन्ये ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान ही जिनका का यज्ञ है। तो इस प्रकार से भगवान जो है अलग अलग प्रकार से उनको क्या करते, उपासना करते हैं। तो माम उपासते, तो 15वें श्लोक में ही कहा ज्ञान यज्ञ के द्वारा अन्य अन्य लोग यजन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। कुछ लोग पृथक्त्वेन एकत्वेन अथवा बहु विश्व के मुख से उन मेरी उपासना करते हैं। तो यही बता रहे कि किस प्रकार की उपासना। फिर कहते यदि बहुभिः प्रकारैः उपासते कथम त्वाम एव उपासते इति आह। अब बहुत प्रकार से उपासना करते हैं तो आप कैसे कहेंगे कि आपकी ही उपासना कर रहे हैं। भगवान कहते मैं आपके लिए वो भी समझाता हूँ। 16वें श्लोक, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमौष
स्वधाहमहमौषधम् स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्य मन्त्रोऽहमहमेवाज्य अहमग्निरहं हुतम् अहमग्निरहं हुतम् अहं क्रतुः अहं यज्ञः स्वधा अहम् अहम् औषधम् मंत्रः अहम् अहम् एव आज्यम् अहम् अग्निः अहम् हुतम्। तो हम जब रोज भोजन के पहले मंत्र बोलते हैं ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो बस वही आपसे आप बता रहे हैं कि अहम क्रतु क्रतुः श्रौत कर्म भेद अहम। श्रौत यज्ञ जो विशेष है वो मैं ही हूँ, क्रतुः। तो अहम एव श्रौत कर्म भेद, उसका मैं ही स्वरूप हूँ। अहम एव यज्ञ, तो शास्त्र में श्रौत स्मार्त ऐसे कर्म माने जाते। तो कर्म विशेष के अंदर कहते कि मैं ही श्रौत कर्मा हूँ और मैं ही स्मार्त करने वाला हूँ, है ना। स्वधा अहम, अहम एव क्रतुः अहम एव स्वधा। स्वधा एक होता है अन्नम। किमर्थम? स्वधा हमेशा, देखो हम हमेशा स्वाहा करते हैं ना, तर्पणम करते हैं ना, वो ऐसा करते देवताओं के लिए, लेकिन जब पितरों के लिए करते तो ऐसा करते, उसको स्वधा। तो स्वधा एक प्रकार से अन्न का हम लोग क्या करते हैं, अन्न का वहां पे एक आहुति देते हैं। अहम अन्नम पितृभ्य यद दीयते, तो वो स्वधा रूप से पितरों के लिए दिया जाता है। तथापि अहम एव, अहम क्रतुः अहम यज्ञ अहम स्वधा, मैं ही अन्न हूँ। अहम एव औषधम, औषधम, औषध शब्द आते ही उसके औषध किसके लिए होता है? बीमारी के लिए, रोग के लिए। तो कोई न कोई तो बीमारी होगी तभी तो औषध की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। बोले मैं ही औषध हूँ, किसके लिए? तो जब भूख, उसको क्या कहते हैं, एक प्रकार की बीमारी। और हम लोगों को कब से बीमारी लगी हुई है? जैसे माँ के पेट से बाहर आते हैं ना, हाँ हाँ, मतलब कुछ डालो मुंह में। पक्षी भी ये क्या करता है, चिल्लाता है, क्यों? उसके मुंह में डालो कुछ, तो कुछ डालेंगे मुंह में तो क्या होता है, स्वाह हो जाता है, फिर उसको वो शांत होता है। तो वो क्या है? औषधि, अन्नम एव औषध। तो वो किसके लिए औषधि है? वो इसके लिए, भूख के लिए। तो इसलिए कहते हैं एक प्यास और शुद्धा, और ये तृष्णा है ना, तृषा। तो वो शुद्धा होती है भूख के लिए कहते, तो शुद्धा के लिए औषध बन जाता है अन्न। और ये कब से चालू है शुद्धा रूपी रोग? जन्म से ही। तो इसके लिए औषधम, उसको उस शुद्धा रूपी बीमारी को मिटाने के लिए मैं ही औषधम। तो स्वधा मतलब पितरों को दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ। मैं ही औषधम, जो अन्न है वो भी मैं ही हूँ। मंत्र अहम, है ना, जो मंत्र बोले जाते हैं, क्योंकि मंत्र जो है, कहा जाता है कि इसके अंदर ऋषियों ने इस मंत्र दृष्टार, इन मंत्रों के अंदर जो है पहले से ही ऐसी शक्ति भर रखी जिसको आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं, जिनके अंदर वो शक्ति है। तो ब्रह्म का ही मतलब स्वरूप एक प्रकार से, तो वो मैं ही हूँ। मंत्र अहम, अहम एव अजह। जब हम लोग मंत्र बोलते हैं, स्वाहा आदि जो है आहुतियां डालते, उसके अंदर घी की भी आहुति पड़ती है। तो वो जो घी की घी की जो आहुति है, वो कहते, उसको कहते आजम। एन पितृभ्य देवताभ्य च हविः दीयते, इसके द्वारा हविष दी जाती है देवताओं के लिए। और हविष के अंदर ये घी भी आता है, उसको घी को यहाँ पे आजम,
हविः अहम अग्नि, किसमें डाला जाता है? अग्नि में डाला जाता है, इसलिए मैं अग्नि भी मैं ही। यस्मिन हुयते सह अग्नि, जिसके अंदर हवन किया जाता है उसको अग्नि कहा जाता है। अग्नि यस्मिन हुयते अहम एव हुतम, जो हवन कर्म है वो भी मैं ही हूँ। इसलिए ये जो श्लोक है बराबर ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को अर्पित किया जाता है। ब्रह्म हवि ही, ब्रह्म ही हवि है। हाँ, ब्रह्म ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ, किसमें डालते हैं? ब्रह्म रूपी अग्नि में डालते हैं। ब्रह्मणाहुतम, देने वाला भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, दोस्तों ब्रह्मवल्ली। इसलिए ब्रह्म कर्म समाधिना, और जो कर्म होता है वो ब्रह्म कर्म ही कहा जाता है। इसलिए इसी अर्थ को इतेश अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधा अहम, अहम औषधम, मैं स्वधा हूँ, जो पितरों को दिए जाने वाला अन्न वो भी मैं हूँ। और औषधम, जो क्षुधा रूपी रोग को मिटाने वाला ये औषध मैं ही हूँ, और मैं ही मंत्र हूँ। अहम एव अजब, मैं ही घी हूँ और मैं ही अग्नि हूँ, और जो दिए जाने वाला हुतम, जो दिया जाता है वो भी मैं हूँ। इस प्रकार से सर्व रूप से यहाँ जो है मेरा ही स्वरूप है। इस स्वरूप में क्या करते हैं वो लोग? मेरा सततम कीर्तयन्तः नित्य युक्त माम उपासते, यजन्तः ज्ञानेज्ञेन पृथक्त्वेन एकत्वेन, है ना, विश्वतः मुखम बहुधा मुखम उपासते। तो चाहे एकत्व से हो चाहे बहुत्व से हो, लेकिन मेरी उपासना करते हैं, और उनके लिए अवश्य ही वो लोग मेरी अनन्य भाव से निरंतर जो है दृढ़ व्रत वाले मेरी उपासना करते। कौन? आसुरी वाली नहीं, दैवी संपत्ति वाले। ठीक है, सो विल सी द नेक्स्ट वन अगेन। तो 13वीं से है ना। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन ते मन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य अहमग्निरहं हुतम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।